वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। TV84 ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕ ਤੇ ਸਰੋਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਅਮਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅੱਜ TV84 ਦੇ ਇਸ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਵਿਊਅਰਸ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ 370 ਧਾਰਾ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਕੰਪਲੀਟ ਲਾਕਡਾਊਨ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲੀ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲਦਾਖ ਦਾ ਖਿੱਤਾ ਹੈ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਇਹਨੂੰ ਸਟੇਟਹੁੱਡ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਪਣੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਅੰਡਰ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇਹਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਨੈਸ਼ਨਲੀ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਲੇਟੈਸਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੋਰਸਿਸ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਉਹ ਮੰਨੇ ਆ AFP ਦੇ ਕੋਲ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ 4000 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਅਫਸਪਾ ਹੋਵੇ, PSA ਹੋਵੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟ ਨੇ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣਾ ਵੀ ਇਸ ਵਕਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੇ ਜ਼ਾਹਰ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੋਲੀਡੈਰਿਟੀ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਇੱਕ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਦੇ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਤੋਂ ਜਾਂ ਉਸ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ। ਸੋ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੀ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਰੀडम ਸਟਰਗਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਲੁਕਾਤ, ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਰਿਫਤ ਵਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿੱਥੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਆਵਾਮ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਆ ਇਸ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਸ ਵਕਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਰਿਫਤ ਵਾਨੀ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। आओ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ मिल के आज ਦੀ ਇਸ विचार चर्चा की शुरुआत करते हैं। रिफत जी, आपका स्वागत है इस शो में। सो सबसे पहले जी रिफत जी, मैं शुरुआत करनी चाहूँगा कि ये जो धारा 370 हटाई गई है, कश्मीरी लोग या कश्मीरी आवाम इस बारे में क्या सोचती है, क्या समझती है और क्या मानती है कि धारा 370 हटाने के पीछे भारत सरकार का मोटिव क्या था, उनकी मंशा क्या थी? अभी लाइक सिचुएशन ऐसी है कि वी आर इन शॉक, क्योंकि वी आर नॉट, हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि 370 हटाया जाएगा। जो वैली में शौक है, जो हम कहीं बाहर लोग बैठे हुए हैं, हम लोगों को कहीं ना कहीं था कि इसके साथ छेड़खानी जरूर करेंगे जी। लेकिन जो वैली के लोग हैं वो आर्टिकल 35A का इंतजार कर रहे थे। और मेरी जितने भी लोगों से बात हुई है, जो वैली के जो लोग हैं, जो दिल्ली या मुंबई या इंडिया के किसी दूसरे जगह पे आते जाते हैं या वहाँ पे काम करते हैं या स्टूडेंट्स हैं, वो सब कह रहे हैं कि हम हैरान हैं कि इन्होंने ऐसा डिसीजन कैसे लिया। और एकदम से, यानी हमारे वहमो गुमान में भी नहीं था कि इंडिया जो है आर्टिकल 370 को ही रिमूव कर देगा। हम तो 35A को रो रहे थे, उसके लिए लड़ रहे थे। इन्होंने तो हमसे ये तो जमीन छीन रहे थे, इन्होंने तो हमसे आसमान भी हमारा छीन लिया जी। तो
कहते हैं कि हम तो आजादी ढूंढने निकले थे, हमने तो अपनी जमीन भी जो है वो खो दी। तो ये वहां पे इस टाइम जो है लोगों के जज्बात हैं और लोग परेशान हैं बहुत ज्यादा कि ये हमारे साथ क्या हो गया। और जिस तरह से ये डिसीजन इम्पोज किया गया उसकी वजह से लोग और हैरत में जो है मुब्तला है। आप देखिए आज 17वां दिन शुरू हो गया है वहां पे, और वहां पे कर्फ्यू लगा हुआ है, वहां पे तमाम रास्ते, तमाम टेलीकम्युनिकेशन जो है सिस्टम बंद है, इंटरनेट बंद है, वहां पे रोड्स पे ट्रैफिक नहीं है, वहां पे हॉस्पिटल्स का आप सिस्टम देख लें, जो लाइट ड्रग है वो खत्म हो रही है, वहां पे आप देखें फूड खत्म हो रहा है, बच्चों के पास पीने का दूध नहीं है, उनके बच्चों का फूड नहीं है, जो बीमार लोग हैं उनको कोई सिस्टम नहीं है हॉस्पिटल तक पहुंचाने का। तो इंडिया ने तो हमें बहुत परेशान करके रखा है। इन्होंने पहले क्या 70 साल में हमें कम अजाब में रखा हुआ था, जो अब नया अजाब इन्होंने हमारे लिए खोल दिया है। तो सब लोग परेशान हैं, हमें कुछ समझ नहीं आ रही कि ये इसके पीछे इनका क्या मोटिव है। ऑब्वियसली लैंड इज द मोटिव, इनको हमारी जमीन चाहिए, इनको कश्मीरियों से कोई सरोकार कभी था ही नहीं। 70 साल से हम ये बात जानते हैं, इनको कश्मीरी नहीं चाहिए, इनको सिर्फ हमारी जमीन चाहिए। जी, जब जमीन की बात करते हैं, जमीन का मतलब क्या आप रिसोर्सेज से ताल्लुक रखते हैं इस बात का कि जमीन चाहिए लेकिन कश्मीरी नहीं चाहिए भारत सरकार को? रिसोर्सेज तो ऑब्वियसली जमीन के साथ ही रिसोर्सेज भी होते हैं। जमीन नहीं होगी रिसोर्सेज कहाँ पे आएंगे? हमारा जो मिनरल्स हैं, हमारे जो फॉरेस्ट है, या हमारा सैफ्रॉन है, हमारा वूल है, बहुत सारे, हमारा जो स्टोन है, प्रेशर स्टोन है वहां पे, और बहुत सारी चीजें हैं। कश्मीर को कभी, अभी देखिए पिछले 70 सालों में को हम अगर छोड़ भी दें, पिछले सिर्फ 30 सालों की बात करें, कितनी दफा, या अगर हम 2016 की ही बात करें, 6 से 7 महीने ऑलमोस्ट जो है जुलाई से लेकर मार्च तक ऑलमोस्ट जो है समझे कि बंद ही रहा है। ये तो कहते हैं 4-5 महीने का कर्फ्यू था, नहीं, वो तकरीबन 6-7 महीने बंद रही है वैली। लोगों को कोई परेशानी नहीं हुई, कोई दिक्कत नहीं हुई, खाने का उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, क्योंकि हमारी थोड़ी ही सही थोड़ी बहुत जमीनें होती हैं, अपना हमारा जो है पैसों का कोई इतना चक्कर नहीं होता। यानी कश्मीर की आवाम इस तरह से गरीब भी उस तरह से नहीं है। इन्होंने इन 3 सालों में हमारी इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाया कि ये लोग जो है गरीब हो जाएं, ताकि जब ये हमारे ऊपर फुली डिपेंडेंट हो जाएं। हमारा टूरिज्म इन्होंने खत्म करवाया, इन्होंने हमारा वहां पे नस्ल कुशी करने में, हमारा जो जेनोसाइड है उसको जो है इन्होंने वक्फे वक्फे से जो है वो जारी रखा। वहां पे पर डे के हिसाब से वहां पे हमारे जो है यंग जनरेशन जो है वो शहीद हो रही थी। इन्होंने पैलेट्स का यूज किया। ये सिर्फ रिसोर्सेज ही नहीं है, इनको कश्मीरियों को खत्म करना है। ये अपनी एक हिंदुआता जो आइडियोलॉजी है उसको इंप्लीमेंट करना चाह रहे हैं कश्मीर के अंदर, बिकॉज कश्मीर इज द ओनली स्टेट इन इंडिया विच इज मुस्लिम मेजोरिटी। जी, ये सिर्फ वाहिद स्टेट है पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो कि मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट है। ये उसको हिंदू मेजोरिटी स्टेट में चेंज करना चाहते हैं, क्योंकि इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इनको हजम नहीं हो रहा है। तो ये जो इनकी जो भाजपा की और आरएसएस की आइडियोलॉजी है, ये उसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं। इनफैक्ट आप अगर देखिए इनका मैनिफेस्टो, वो उस पर तो साफ साफ लिखा था कि हमें एक हिंदुआता स्टेट चाहिए, वहां पे तो माइनॉरिटीज की जगह नहीं है। और अगर कोई इस भूल में है कि वो ये सिर्फ मुसलमानों पे जाके बात खत्म होगी, मुसलमान पहला शिकार हैं, उसके बाद सिख हैं, उसके बाद दलित्स हैं, या ये हो सकता है कि पहले दलित्स को उसके बाद नंबर लगे और उसके बाद जो है सिखों का नंबर लगे और क्रिश्चियंस का नंबर लगे। लेकिन इनको हिंदूज चाहिए वहां पे, सिर्फ वहां पर कोई भी जो है इनको माइनॉरिटी नहीं चाहिए। आप देखिए इनका स्लोगन क्या है, जिसको हिंदुस्तान में रहना है जय श्री राम कहना है। जी, मतलब आप एक तरफ से आप सेक्युलरिज्म का ढिंडोरा पीट रहे हो, डेमोक्रेसी का ढिंडोरा पीट रहे हो, ऑन द अदर साइड योर स्लोगन सेज कि यहाँ पे सिर्फ हिंदू स्टेट होनी चाहिए, यहाँ पे आपने किसी को और जो माइनॉरिटीज है उनको रहने नहीं देना। जी, अगर इस वक्त जो सिचुएशन बनी हुई है कश्मीर में उसकी बात करनी हो, जैसे खबर आई है कि 4000 से ज़्यादा जो तादाद है वो कश्मीरी नौजवानों को पीएसए पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया है, जिनमें से ज़्यादा की तादाद है
जिनको कश्मीर में भी नहीं बाकी जो स्टेट्स हैं उनमें ले जाकर उन्हें रखा जा रहा है। तो क्या समझते हैं इस वक्त सिचुएशन क्या बनी हुई है कश्मीर में, रिएक्शन क्या आ रहा है इस सारे पार्ट के धारा 370 के हटाने के बाद, कश्मीरियों का रिएक्शन क्या है इसके बारे में? आपको लगता है कि ये जो 4,500 का फिगर है ये 4,500 ही है? इट इज अबाउट 10,000। अभी कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक 6,500 था, लेकिन ये 10,000 से भी ऊपर है। जो कश्मीर में रखेंगे किधर? जो कश्मीर की जेलें हैं वो तो भरी हुई हैं, अब तो इनके पास वहां पे रखने के लिए जगह भी नहीं है, इसीलिए ये उनको हिंदुस्तान जो है मुंतकिल कर रहे हैं। क्योंकि जितनी पॉलिटिकल पार्टीज थी उनके तमाम वर्कर्स, जो हमारी रेजिस्टेंस लीडरशिप थी उनको और उनके तमाम वर्कर्स को, उसके अलावा फिर जो स्टोन पेल्टर्स है जो इन्होंने खुद बनाए हुए थे या जो थे भी, उन सबको, ये 7 साल से लेकर 45 साल के जो मर्द हैं उनको आते हैं, घरों में रेड करते हैं, रातों को उठा के ले जाते हैं और उनको जो है इंडिया की मुख्तलिफ जेलों में लेके जाते हैं। वहां पे इतनी दहशत इन्होंने मचा के रखी हुई है, गुंडागर्दी इन्होंने मचा के रखी हुई है। ये इंसानियत के नाम पे जो है ना ये धब्बा है, ये जो भारतीय जनता पार्टी है ये इंसानियत के नाम पे धब्बा है। इन्होंने, जो मेरी इतलात के मुताबिक है, जो आई विटनेस कहते हैं कि एक ट्रेन भर के गई है कश्मीर में सिविल इंडियंस की। मसलन आप देखें, ट्रेन हमारे लिए बंद है, सब कुछ बंद है और वहां पे कर्फ्यू लगा हुआ है, तो वो इंडियंस किस लिए आ रहे हैं वहां पे? जी। फिर जितनी भी फ्लाइट्स जाती हैं, क्योंकि मुझे बड़ा, हमारे सिख भाइयों ने, हमारे एक भाई हैं जफी सिंह जी, उन्होंने बड़ी मदद की हमारे स्टूडेंट्स को जो है वहां से बाहर निकालने में। तो जिन लड़कों या लड़कियों के हम टिकट्स बुक करवाते हैं वो फिर जाहिर बात है हमारे साथ इन कांटेक्ट होते हैं। तो उन्होंने बताया कि हमारे साथ तो सारे के सारे इंडियंस हैं, हम तो हैरान हैं कि ये हमारे साथ श्रीनगर जा रहे हैं, जा कहाँ रहे हैं? वहां पे तो सारा कर्फ्यू लगा हुआ है, तो ये कौन लोग हैं? जी, 3-4 कश्मीरी और बाकी सारे के सारे इंडियंस हैं। इन्होंने आरएसएस के गुंडे जो है वहां पे उतारे हुए हैं। वहां पर हमें बहुत सारी रिपोर्ट्स मिली हैं कि जहां पे खवातीन के साथ इन्होंने रेप के, हमें सिर्फ 2 केसेस की इतला आई है कि दो रेप केसेस हुए हैं और उसके बाद जो है बाकी जो हमारे पास आए हैं, मोलेस्टेशन क्या है, हरासमेंट क्या है। तो बीबीसी की एक, मुझे उनका नामनिगार, उनका मुझे नाम भूल गया, उन्होंने इंटरव्यू दिया है कि मैंने खुद देखा कि इन्होंने प्रोटेस्ट के जो यहाँ पे सोवरा में जो प्रोटेस्ट हुआ था, बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था, तो उसमें जो है उन्होंने पानी की तरफ धक्का दिया, लड़कों को भी और इनको खवातीन को भी। तो लड़कों को आधी आर्मी ने लड़कों को घेरा और आधी आर्मी जो है लड़कियों के पीछे पानी में उतरी और उन्होंने उनके साथ बदतमीजी की। तो ये इनका असली और मकरूज चेहरा है। इन्होंने लाया ही वहां पर है कि उनको उनकी इज्जत के डर से डराया जाए, उनको जो है हरास किया जाए, उनको जो है धमकाया जाए ताकि वो हमारे प्रेशर में आ जाए। लेकिन एक बात मेरी याद रखिएगा, अगर मोदी इस ख्याल में है कि कश्मीरी इस दफा बैठ जाएंगे, वो अब उसको सारी जिंदगी वहां पे कर्फ्यू लगा के रखना पड़ेगा, सारी जिंदगी उसको वहां पे कर्फ्यू लगा के रखना पड़ेगा। इस दफा कश्मीरी कौम नहीं बैठे, वो सारे तैयार है। वो कहते हैं डू और डाई। वो कहते हैं कि एक दफा गोली मारेंगे, थोड़ा सा ठीक होंगे, दोबारा बाहर निकलेंगे, दोबारा गोली खाएंगे, बेशक मर जाए लेकिन हम इसको नहीं छोड़ेंगे। ये वहां पे लोगों के जज्बात है। कहते हैं एक ही दफा हम इसका फैसला करेंगे, तो या तो हम अपनी इस जमीन को जो है अपने लिए भी और इनके लिए भी कब्रिस्तान जो है वो बनाएंगे। जी रिफत जी, ये जो हम सिचुएशन की बात कर रहे हैं, इसमें हम देखते हैं कि ये इशू इंडिया हमेशा क्लेम करता है कि ये हमारा इंटेग्रल पार्ट है, इंटरनल इशू है जो कश्मीर का इशू है, लेकिन इसमें पाकिस्तान भी इन्वॉल्व है। और ख़ास तौर पे इस वक्त जब इसके ऊपर इंटरनेशनली डिबेट हो रही है, इवन चाइना भी अपना जो क्लेम है वो एक्साइचन पे रखता है। सो पाकिस्तान की जो इस पर पोजीशन रही है पिछले 2 हफ्ते में, उसे आप कैसे देखते हैं? पाकिस्तान ने कोशिश की है कि कश्मीरियों का जो इशू है उसे इंटरनेशनलाइज किया जाए, यूनाइटेड नेशंस तक लेके जाने के लिए और अदरवाइज भी। सो पाकिस्तान का जो स्टैंस है, जो इस सारे 2 हफ्ते में रोल रहा है, उसे आप कैसे एनालाइज करते हैं, कैसे देखते हैं?
नहीं, ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं पाकिस्तान के अगर अगर हम उनके इंटरनल हालात भी देखें तो वो काफी जूझ रहे हैं अपने मुल्क को जो है इस बहरान से निकालने के लिए। उनके अपने इंटरनल बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, ऊपर से इतना बड़ा मसला वहां पे खड़ा हो जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी जो वो कर सकते थे मैं समझती हूँ उन्होंने वो किया है। वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जा रहे हैं, उन्होंने जो है ओआईसी में जो है इसको लेके गए। दुनिया का मेरे ख्याल से कोई ऐसा मुल्क नहीं है जहां पर उन्होंने अपने जो उनके मिनिस्टर्स हैं वो नहीं गए हों, और या उन्होंने इमरान खान साहब ने खुद उनको जो है टेलीफोन ना किया हो। मेरे ख्याल से उन्होंने तैयब उर्दगान साहब को फोन किया है, डोनाल्ड ट्रंप को फोन किया है, उसके अलावा उन्होंने सऊदी किंग को भी फोन किया है, ईरान को भी फोन किया है, यानी चाइना को जो है सफीर अपना भेजा। सॉरी, शाह महमूद कुरैशी साहब जो है वो गए हैं वहां पे। जी। तो मेरा ख्याल है कि वो जितना कर सकता था। और जब हम उसका सिक्योरिटी काउंसिल का देखते हैं तो 4 मेंबर्स जो हैं नजर आता है कि फ्रांस के अलावा जो है रशिया, चाइना, इंग्लैंड और अमेरिका वो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं अभी अभी तक जो दिख रहा है। जी। और उसके बाद जो बाकी उसके जो 15 मेंबर्स हैं उन लोगों ने भी सपोर्ट किया और उन्होंने कहा है कि सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास जो है कश्मीर के ऊपर बुलाया जाए, क्योंकि वहां पे कश्मीर में हालात काफी खराब हैं और वहां पे बहुत मास लेवल पे ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहा है। तो ये मैं समझती हूँ कि ये जो हिंदुस्तान कह रहा था कि ये मेरा इंटरनल मैटर है, तो इससे बड़ा थप्पड़ तो मिस्टर मोदी को पड़ नहीं सकता, क्योंकि जिस किसी से भी उसने बात की है उसको कहा गया कि भाई ये तुम्हारा इंटरनल मैटर नहीं है। अगर सिक्योरिटी काउंसिल में बात इस टाइम चल रही है, वहां पर अभी 15 से 20 ममालिक जो है इसके ऊपर बात करेंगे, तो इंटरनल मैटर कहां से रहा? वो 1 करोड़ जिंदगियों का मसला है। 1 करोड़ जिंदगियां किसी का इंटरनल मैटर नहीं हो सकती। 1 करोड़ इंसानों को जो है आपने, मैं सिर्फ वादी की बात कर रही हूँ, 1 करोड़ जो बाकी आप जम्मू या लद्दाख कारगिल की पॉपुलेशन मिलाए तो ये 1 करोड़ से ऊपर चली जाती है, ये 14 मिलियन से ऊपर चली जाती है, 14 मिलियन से अबव जाती है। तो आप मुझे बताएं, आप 14 मिलियन लोगों की जिंदगी का फैसला जो है आप खुद अकेले करते हैं और कहते हैं कि इंटरनल मैटर है। आपने उनको हॉस्टेज जो है वो बना के रखा हुआ है, आप कहते हैं इंटरनल मैटर है। आपने वहां पे जो है लोगों की जिंदगी अजाब की हुई, आप कहते हैं कि इंटरनल मैटर है। कौन सा इंटरनल मैटर है आपका? जी बिल्कुल नहीं, इस बात पे तो ये अभी जब मैटर सारा इंटरनेशनलाइज हो चुका है तो बात अभी ये इंडिया का क्लेम करना भी कहीं ना कहीं एक बड़ा उस पर क्वेश्चन मार्क लगता है। लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी की जब हम बात करते हैं, इवन जो हमारे यूएस के प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने भी पिछले दिनों इस पे काफ़ी जो बयानात हैं वो किए हैं। अभी जो फ्रांस में मीटिंग होने वाली है उस पे भी उनका बयान आया है आज का लेटेस्ट के मोदी के साथ मेरी मीटिंग होगी और वी विल सी इफ़ वी कैन फाइंड अ सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम, और इंडिया और पाकिस्तान एक साथ होकर मिलकर चलें। सो क्या समझते हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी इस इशू पे, कश्मीर के मुद्दे पर क्या रोल अदा कर सकती है, और आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है इंटरनेशनल कम्युनिटी से? इंटरनेशनल कम्युनिटी से तो देखिए हम लोग बहुत कम ही एक्सपेक्ट करते हैं, बिकॉज बदकिस्मती से जो है हमारी मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट है। हमारे लिए खुशकिस्मती है, उनके लिए बदकिस्मती है कि मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट है। आप देखें लीबिया, इराक, सीरिया, अफगानिस्तान, इस सारे ममालिक इन्होंने खत्म कर दिए इस्लामिक, यानी कोई मुस्लिम मुल्क इन्होंने छोड़ा नहीं है जहां पे इन्होंने जो है अपनी कार्रवाइयां ना की हो। तो हमारी उम्मीदें तो बहुत कम हैं, लेकिन अब इसमें क्योंकि 3 न्यूक्लियर पावर्स इन्वॉल्व हैं, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, ये शायद हमारी कहीं पे खुशकिस्मती है कि हमारे लिए, क्योंकि न्यूक्लियर वॉर के डर से, क्योंकि इनके अपने इंटरेस्ट है, इन्होंने अपना बड़ा पैसा लगाया हुआ है, वो चाहे इजराइल हो, वो चाहे अमेरिका हो, वो चाहे रशिया हो, वो चाहे चाइना हो, इन्होंने इन्वेस्ट की हुई है इंडिया में, पाकिस्तान में। तो ये नहीं चाहेंगे कि क्योंकि इनको पता है दोनों न्यूक्लियर मुल्क है, क्योंकि पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान छोटा मुल्क है इंडिया से, पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन चलाने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो कुछ भी हो, थोड़ी सी जंग होगी, वो अपना ऑप्शन यूज करेगा, क्योंकि इंडिया ने एग्रीमेंट साइन किया हुआ है कि वो न्यूक्लियर वेपन जो है वो नहीं चलाएगा, और पाकिस्तान उससे बरी है। पाकिस्तान ने कोई एग्रीमेंट साइन नहीं किया, पाकिस्तान ने पाबंदियां बर्दाश्त की हैं पिछले 20 साल से। जी। तो पाकिस्तान किसी एग्रीमेंट की कैद में नहीं है।
लेकिन इंडिया एग्रीमेंट की कैद में है, तो इसका नुकसान जो है वो अल्टीमेटली इंडिया को ही उठाना पड़ेगा। जी। नहीं, ये जो न्यूक्लियर वॉरफेयर की जब हम बात कर रहे हैं तो पिछले दिनी भारत के राजनाथ सिंह का बयान भी आया था। उन्होंने कहा था कि हमारी जो फर्स्ट यूज़ की पॉलिसी है हम उसे दोबारा रिव्यू कर सकते हैं, जिसका सीधा सीधा मतलब था कि हम न्यूक्लियर वेपन पहले भी यूज़ कर सकते हैं, भारत अटैक भी कर सकता है न्यूक्लियर वेपन के साथ। ये जो सीधी सीधी एक तरह से धमकी कही जा सकती है, आप क्या समझते हैं कि अगर सिचुएशन ऐसी बनती है आने वाले समय में तो क्या उसका जो सोल्यूशन है या ये डी एस्केलेशन उसे कैसे की जा सकती है इस सिचुएशन में? मैं तो पॉलिटिकल एनालिस्ट नहीं हूं, लेकिन थोड़ा बहुत दिमाग रखती हूँ। एक इंसान के हैसियत से जो मेरी सोच है, मैं उसी के ऊपर बात कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे पॉलिटिक्स के बारे में ज्यादा पता नहीं है। जी। देखिए, इसका नुकसान किसको होगा? वो धमकी दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं? पाकिस्तान को धमकी दे रहे हैं, ओब्वियसली पाकिस्तान को ही धमकी दे रहे हैं। जी। पाकिस्तान को इस टाइम चाइना भी साथ देगा, रशिया वो करेगा जो उसको चाइना बोलेगा। तमाम जो उसके नेबरिंग कंट्रीज हैं, इंडिया के किसी के साथ इस तरह कोई टर्म्स अच्छे नहीं है, ना चाइना के साथ ना रशिया के साथ। रशिया के साथ फिर भी थोड़े से हैं, लेकिन रशिया जो है इस टाइम चाइना के साथ जो है उसका अलायंस हुआ है, वो वही करेगा जो उसको चाइना कहेगा। तो इंडिया को अगर वो न्यूक्लियर वॉर करता भी है तो उसको हेल्प करने कौन आएगा? वो वॉर स्टार्ट करता भी है, पाकिस्तान को तो चाइना ने बड़ी इन्वेस्टमेंट की हुई है, वो तो अपनी इन्वेस्टमेंट डूबने नहीं देगा। तो फायदा किसको जा रहा है? पाकिस्तान, उसको नुकसान होगा, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान किसको होगा? इंडिया को होगा। तो ये ऐसे ही भूखी नंगी इनकी कौम मर रही है। ये न्यूक्लियर वॉर करेंगे, ये कहते हैं कि कश्मीर में हम लोग जो है इन्वेस्ट करेंगे। भाई, अपने लोगों के लिए टॉयलेट बनाओ, घर बनाओ, हम कश्मीरी भी आप लोगों को जो है डोनेट करेंगे। उन गरीबों को पैसा दो जो 30 करोड़ के करीब जो लोग आपके जो है सड़कों पर सो रहे हैं, उन लोगों को घर प्रोवाइड करो, उनको छत प्रोवाइड करो, उनको फूड प्रोवाइड करो, उनको टॉयलेट्स प्रोवाइड करो, उनको हेल्थ और फैसिलिटीज और उनको एजुकेशन दो जी, ताकि वो तुम लोग जैसे राजनाथ जैसे और ये मोदी जैसे जाहिल पैदा ना हो। ये तो जाहिल है, ये तो लोगों को ये कम्युनल एक वहां पे एक नफरत इन्होंने वो क्रिएट की है मजहब की बुनियाद पर। ये इस तरह के जाहिल लोगों को जो है ये आगे आ रहे हैं, ये वहां पर कश्मीर की जो है औरतों को उठाने की बात कर रहे हैं। ये वहां पर जो है इन्होंने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वहां पे फसादात जो है वहां पे उठा के रखे हुए हैं। गाय के गोश्त पे इन्होंने गाय को इतना इन्होंने मोतबर कर दिया है। तो ये लड़ेंगे, ये वॉर करेंगे, ये धमकी देंगे न्यूक्लियर वॉर की। ये सिर्फ इनकी गीदड़ भपकियां हैं, कर कुछ नहीं सकते। जी। और एक बात, जब हम डिफरेंट एस्पेक्ट से बातचीत कर रहे हैं, ख़ास तौर पर जब भी 5 अगस्त को ये फैसला भारत सरकार ने लिया, तो उसके बाद जब से ये प्रोटेस्ट का सिलसिला शुरू हुआ है दुनिया भर में, ख़ास तौर से जब 15 अगस्त का दिन आया, सिख हमेशा इस दिन को काले दिवस के तौर पर मनाते रहे हैं। और इस बार ये एडिशन में देखने को मिला कि कश्मीरी लोगों ने, कश्मीरी आवाम ने भी इन प्रोटेस्ट में दुनिया भर में, वो चाहे नॉर्थ अमेरिका हो, यूरोप हो, इवन पंजाब में भी ऐसा हम कह सकते हैं कि कश्मीरी और सिखों ने एक साथ एकजुटता का इजहार किया और 15 अगस्त का जो दिन है वो काले दिन, ब्लैक डे के तौर पर मनाया। ये जो कश्मीरियों की, सिखों की और मुसलमानों की सांझ है जो आपस में एकजुटता है, इसे आप कैसे देखते हैं? मैं 47 से पहले की तो बात नहीं करती हूँ, लेकिन 47 के बाद और स्पेशली जब 84 का जो आई थिंक ये नवंबर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, नवंबर 84 था, और वो जो इंसिडेंट हुआ, जो जेनोसाइड हुआ सिखों का, उसके बाद से जो है मुसलमानों और सिखों का बहुत ही एक क्लोज एक वो बना, रिश्ता बना। बल्कि उससे पहले ही अगर आप देखें, उससे पहले भी काफी रिलेशन जो है वो डेवलप हो चुके थे, लेकिन उसके बाद जो है एक हमदर्दी का फैक्टर जो है मुसलमानों में बड़ा पैदा हुआ सिखों के लिए। और सिख कौम की मैं शुक्रगुजार हूं कि वो उसको भूले नहीं
और जब कभी भी हमें अभी जरूरत पड़ती है, कुछ भी होता है, तो सबसे पहले सिख कम्युनिटी जो है वो हमारे लिए निकलती है। और ये एकता जो है ओब्वियसली कहीं ना कहीं इनको खटकती भी है, और उसका सबूत जो है अभी कुछ दिन पहले हमें देखने को मिला। जी बल्कि 2 दिन पहले की बात है, बल्कि कल की बात है, सॉरी, 2 दिन पहले भी नहीं, कल की बात है, कि इन्होंने जो है पंजाब में बिना बारिशों के पानी छोड़ दिया। डैमों के दरवाजे इन्होंने खोल दिए। पूरा पंजाब जो है इस टाइम पानी से भर गया है। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि उनको पता था इनको कुछ करना है कश्मीर के अंदर, और इनको पता है कि सबसे पहले सिख जो हैं वो जाएंगे वहां पर उनको हेल्प करने के लिए। तो जी इन्होंने इंगेज कर दिया सिखों को वहां पर, पंजाब के अंदर, ताकि वो इनको कश्मीरियों को मदद ना करें। इनका अभी कोई बहुत बड़ा प्लान है। ये सिर्फ यहीं पे बात जाके ये खत्म नहीं हो रही कि उन्होंने आर्टिकल 370 रिमूव कर दिया। अभी जो है ये आर्टिकल 370 इनके गले की हड्डी बन गया, ना इनसे निगली जा रही है ना इनसे उगली जा रही है। ये अगर कर्फ्यू, अब इंटरनेशनल प्रेशर भी है इनके ऊपर कि आप कर्फ्यू हटाओ, ना ये हटा पा रहे हैं, ना जो है उसको जो है लगा के रखते हैं। तो ऑब्वियसली इतनी बड़ी आर्मी कब तक आप बंद रखेंगे? जो ही वो थोड़ी सी रिलैक्सेशन देते हैं, लोग बाहर निकल आते हैं, लोग रेजिस्ट करते हैं। जी तो सिखों और मुसलमानों को, ये सिर्फ सिखों और मुसलमानों को नहीं, ये तमाम जो रिलीजन्स हैं इनका फायदा ही इसी में है। ये उनको डिवाइड कर रहे हैं। और ये आप देखें, ये एक कम्युनल ग्रुप है जो इकट्ठा हुआ है। वहां पे देखिए हिंदुस्तान में जो है बहुत अच्छे लोग भी हैं जो निकले हैं अभी कश्मीरियों के लिए, लेकिन उनकी आवाजों को दबा दिया जाता है। उनकी, आप देखिए, जर्नलिस्ट की आवाजों को दबा दिया इन्होंने तमाम उठती आवाजों को दबा दिया। तो सिख क्या है, उनको एक पानी छोड़ दिया, वो बेचारे लगे अपने घरों को और अपने परिवार को बचाने में, उनको जी साइड कर दिया। तो ये इनसे एकता नहीं देखी जाती, ये खुद अपने मुल्क के दुश्मन हैं। और आप, अगर हम सोल्यूशन की बात करें इस प्रॉब्लम का, तो यूनाइटेड नेशंस ने के जो रेजोल्यूशंस हैं कश्मीर में प्लेबिसाइट करवाने के लिए, वो कभी इम्प्लीमेंट नहीं हुए। इंडिया ने कभी उसके इम्प्लीमेंटेशन के बारे में बात ही नहीं की। लेकिन आप इस सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे देखते हैं, या क्या समझते हैं कि सोल्यूशन इंटरनेशनल कम्युनिटी की इन्वॉल्वमेंट के साथ क्या सोल्यूशन इसका निकल सकता है? इसका यही सोल्यूशन है कि हिंदुस्तान को अपनी हठधर्मी छोड़नी होगी, जो कि बहुत मुश्किल नजर आती है। जब तक हिंदुस्तान अपनी हठधर्मी नहीं छोड़ेगा तो इसका सोल्यूशन नहीं निकल सकता, क्योंकि इसका एक ही सोल्यूशन है कि पूरे स्टेट जो कि पाकिस्तान के पास भी हिस्सा है, जो इंडिया के पास हिस्सा है, इस पूरे हिस्से को राइट दिया जाए कि ये खुद डिसाइड करे कि ये क्या चाहते हैं। ये कोई इंडिपेंडेंट स्टेट चाहते हैं, ये पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं, ये इंडिया के साथ रहना चाहते हैं। और अभी पाकिस्तान इसमें बड़ा सपोर्ट कर सकता है, बड़ा रोल प्ले कर सकता है। वो जो उसके पास हिस्सा है उसको और एम्पावर करे और एक तहरीक खड़ी करे कि ठीक है, हम लोग जो है, मैं तैयार हूं रेफरेंडम के लिए, हिंदुस्तान को बुलाया जाए, इंटरनेशनली इस पे प्रेशर डलवाए कि हम तैयार हैं रेफरेंडम करवाने के लिए, आप भी उनको राइट दो, हम भी इनको राइट देते हैं, तो हम रेफरेंडम करवाते हैं। तो ये एक हो सकता है। लेकिन अभी जब इसने आर्टिकल 370 खत्म किया है, वो एक, क्योंकि ये अभी ला के वहां पे हिंदुओं को बसाएगा और ये वहां पे उनको जो है वहां की नेशनलिटी देगा, तो ऑब्वियसली वो जिन को नेशनलिटी देगा तो वो तो इनके हक में डालेंगे, तो वो फिर उसका इफेक्ट भी हमारे ऊपर पड़ता है। तो इसीलिए हम नहीं चाह रहे थे कि आर्टिकल 370 तब तक खत्म हो जब तक जो है हमें ये रेफरेंडम का जो है हक मिलता है। तो इसका यही एक तरीका है मेरी नजर में, इसके अलावा तो और कोई नहीं है। और यही है कि हमारे लोग अगर खड़े हो जाएं, दोनों तरफ के लोग खड़े हो जाएं और वो रेफरेंडम की डिमांड करें, तो एक इम्पैक्ट पड़ सकता है इंटरनेशनली। लेकिन अभी तक अनफॉर्चुनेटली जो हमारे अंदर कमजोरी है वो ये है कि हम लोग भी अभी यूनाइट नहीं है। हमारी कोई तहरीक, हमारा कोई इतना बड़ा लीडर पैदा नहीं हुआ कि जो पूरी कौम को एक कर सके। एक लीडर होता है ना जो आपकी पूरी जो है सारी चीजों को वो करता है, भाई साइड पे छोड़ो, नहीं, पहले अपनी कौम, पहले अपनी जमीन, पहले अपना वतन। तो वो एक लीडर हमारे अंदर मिसिंग है। हम में भी अभी वो लीडर पैदा नहीं हुआ। वो पता नहीं कहाँ है, कब निकलेगा और हमें जो है निकालेगा। मैं तो अपने, अगर ये प्रोग्राम जो मेरे वतन के लोग देखें, तो मैं उनसे कहूंगी कि
हम सब में एक लीडर छुपा होता है जी। अभी हमारे पास कोई लीडर नहीं है, तमाम लीडरशिप जो है जिसको आप फॉलो करते हैं वो तमाम जेलों में बंद है। तो इस टाइम वतन को जो है एक लीडर की जरूरत है, और आप हमारे वतन में जो है आप बहुत काबिलियत है, तमाम लोग जो है पढ़े लिखे हैं। तो आप खुद फैसला करें कि इस टाइम हमें क्या करना चाहिए। आप लोग खुद सामने आए और वॉलंटियर जो है आप लोग काम करें अपने वतन के लिए, और अपने वतन की आवाज बने। और वो जो 1 करोड़ अवाम इस टाइम मैसूर है घरों में, उनकी आवाज बने, और जो है एक मूवमेंट चलाए, रेफरेंडम की मूवमेंट चलाए। अभी ये मत बोले कि जो है ना हम जो है एक हिस्से को आजादी दो, दूसरा नहीं, पूरी स्टेट जम्मू एंड कश्मीर की के लिए आप रेफरेंडम की डिमांड करो, और अपना फैसला खुद अपने हाथों से करो। वो किसके हक में जाता है उसकी परवाह मत करो, लेकिन अपना फैसला अपने हाथ से करो। जी बिल्कुल। रिफत जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना समय निकाला और हमारे साथ इस सारे कश्मीर इशू के बारे में जो कश्मीरी पर्सपेक्टिव है उस हवाले से बातचीत की। तो आज हम आपके यहीं पर धन्यवाद आपका बहुत बहुत, और यहीं पे इजाज़त चाहेंगे आपसे। मैं एक तमाम जो हमारे सिख भाई हैं जी, मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। जितनी भी सिख कम्युनिटी है, मैं कश्मीर की बेटी आप लोगों की बहुत शुक्रगुजार हूं, क्योंकि जब पुलवामा का अटैक भी हुआ तब भी हमारे सिख भाई जो हैं हमारे साथ हुए। जब 2016 में जो है बुरहान वानी का वहां पे हुआ, और तब भी सिख भाई जो है वहां पे उन्होंने फूड और राशन वो लेकर आए, उन्होंने कैंप्स लगाए। इसी तरह जब फ्लड आया तब भी हमारे सिख भाई वहां पे साथ थे। तो हम हमेशा जो है, हमारी जान भी आप लोगों के लिए हाजिर है, और हम हमेशा आप लोगों के जो है साथ हैं। हमारी पूरी कौम जो है आपके साथ है। मैं अपनी कोई लीडर नहीं हूं, अपनी पूरी कौम की बात क्या करूं, लेकिन हम लोग कभी नहीं भूल सकते। लेकिन मैं अपनी जात के लिए, मेरी जान भी हाजिर है, क्योंकि जिस तरह से आप लोग सामने आए हमारे वतन के लिए, हमारे लोगों के लिए, मैं उसको कभी फरामोश नहीं कर सकती। और मेरी दुआएं हैं आप लोगों के साथ। इंशाल्लाह आप लोगों की दुआ भी जल्दी पूरी होगी, और आप लोग भी जो है अपना एक अलग और अपना वतन जो है आपको, आपकी जमीन जो है इंशाल्लाह नसीब होगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद रिफत जी। दोबारा फिर आपसे ज़रूर मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे अगर कोई नई जो डेवलपमेंट है इस सारे इशू में सामने आती है। सो आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, आदाब, शुक्रिया। आदाब। व्यूअर्स, ਇਹ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਨੇ ਰਿਫਤ ਵਾਨੀ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵਕਤ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸੋ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ TV84 ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। TV84 ਨੂੰ ਡੋਨੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ www.tv84.tv ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੰਥਲੀ ਡੋਨੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਲਈ ਪਲੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਚੈੱਕ ਰਾਹੀਂ ਡੋਨੇਸ਼ਨਸ ਭੇਜਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ TV84 ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਚੈੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਐਡਰੈਸ ਤੇ ਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 3601 37th ਐਵਨਿਊ, ਲੌਂਗ ਆਈਲੈਂਡ ਸਿਟੀ, ਨਿਊਯਾਰਕ 11101। ਵੈਬਸਾਈਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, www.tv84.tv। ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਊਅਰਸ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।